Hello everyone, I am Niharika Tiwari from Sociobits, and today at Sociobits Talks, I am with Mr. Satish Salwankar, who is a mutual fund distributor and also an insurance advisor. He is joining me today with Mr. Rahul Ambre, who advises him into mutual fund distribution. And today we are going to dive into the world of mutual funds. Thank you for joining us today, sir. So, sir, could you explain how does mutual funds work as an investment tool? So basically, mutual fund is a pool of investors' money. Okay, let's say there are 10 people in this room who are not aware where to invest in stock market and even don't have enough time to actually which stock is better, which stock is not so good, and whatever the market conditions they are not able to understand. So for them, mutual fund is a very good option. Wherein there is a fund manager who manages fund on behalf of those investors. So let's say 10 investors are there. So every investor invests as per their capacity into that particular fund, and that fund manager manages that fund on their behalf, on the investor's behalf. So that is how actually mutual fund works, and there are different type of schemes which we can discuss later on. Okay. And why do you think people should invest in mutual funds? So basically, let's see, there are so many options available in the market. So there are FDs, fixed deposits, RDs, that is recurring deposits. Many of our Indian investors, they are more interested into FDs and RDs since there are fixed returns. Okay? But also we need to understand that the fixed returns are fetching you only 5, 5.5 or maximum 6% kind of returns. So the inflation rate which is going on in our country right now is close to 6, 6.5. Sometimes it goes below 5 as well. But that even if your FD interest it is around 5.5%, it is not able to actually beat your inflation all the time. So for that to get some extra returns and to create some good corpus for your future or for any goal for that matter, you have to invest into mutual funds which can give you double-digit returns or 11, 12% returns or 15% returns. There are many schemes in the market in last 10 years or 15 years or 20 years have delivered more than 10, 12, 15% of returns. So it depends on investor to investor what's their actually risk appetite, and accordingly we can advise them whatever schemes they can actually invest in. And there are few advantages of investing in mutual fund, such as the time duration is flexible. In many other investment, it's not flexible. Second, the amount, you can start investing with as low as 500 rupees per month. So in many investment that is not possible. Okay, and then there are it is regulated. Okay, so that is one other advantage of that. And the major advantage of this fund is it's means there are for example there are different types of fund, so they can cater to different goals that you have. Okay, short term, long term, medium term. So that is the major advantage of the mutual fund for an investor. And can you point out any specific strategy that the people can follow when they are investing into mutual funds? So yeah, so there are different options available if you want to invest into mutual funds. Let's say one is lump sum. You have X amount of money. Let's say you have 100 rupees. You want to invest into one go. So you can go and actually invest 100 rupees. Actually, the minimum investment amount required to invest in a mutual fund investor in any given scheme is rupees 5,000. So you can start with 5,000 rupees. Okay, and there are different ways as I said. So one is systematic investment plan. SIP is something which is Indian investors actually started investing into. When I started working into this industry, the SIP book was close to 3,500 crores every month. Now that same SIP book, which was 3,500 crores, is now 12,500 crores. You can see the kind of money which is going into mutual funds through SIP. So SIP is something, as I said, is a systematic investment plan. So just to understand in a layman languages, you do RD, right? Recurring deposits. What you do is X amount, whatever you want to invest, every month that X amount goes into your recurring deposits. The same way you are investing whatever X amount you want to invest in, you can invest monthly into a mutual fund scheme. So actually that gives you the benefit because see, ultimately there are different types of mutual funds, but in equity mutual funds when we are investing, this money is going into a equity
market, right? And equity market, as we all know, there are a lot of volatility. Okay, so one cannot understand, is it a good time to invest right now, or shall I wait and later on I can invest? So for those kind of investors who are actually confused that what time actually I have to invest, they can invest through SIP. Since SIP will start a monthly or a quarterly or a half year you can do. So monthly you can start with X amount, and every month whatever the NAV of the fund is, okay, you are getting invested. So let's say in the month of January you started a SIP. That day the fund NAV was 10 rupees. So you invested, let's say 1,000 rupees into a 10 rupee NAV. Let's say February market is volatile. Let's say market is going good. Okay, so NAV becomes 11. So you are investing another 1,000 rupees into at 11 rupees per NAV. Let's say March month market is not doing not doing that great. So let's say NAV has come down to 9 rupees. So you are investing into 9 rupees. So rupee cost averaging is happening actually. So your whatever money you are investing, it is getting averaged out. So actually that actually reduces your risk of volatility. So that is how SIP works. And there's another way which is not so famous that way, but there is another way, that is systematic transfer plan. So what you can do is, instead of putting your money into a bank account, so SIP works like your money actually gets debited from your bank and goes into a fund. So in STP what happens is, you are investing into a fund. Okay, let's say a debt fund or ultra short term fund or a liquid fund. You invest there, and from that one fund, from A fund, this money is going to a B fund, let's say equity fund. So STP happens like one fund to another fund. SIP happens like from bank account to actually whatever fund you choose into. Okay. And And I will add to that. You see, investors make money due to discipline and their knowledge, not due to strategy. So if you take any strategy of investment, you should be disciplined enough to follow that strategy through. Okay. So what I will suggest is, first prepare a goal planning. Based on that you can select SIP, STP or SWP, whatever plan you have, and stick to that plan and stay invested. You will make money. So strategy is important, but the discipline is more important than the strategy. in choosing to one thing and sticking Sticking to to it. it. Yeah. Okay. So, and speaking of good time, can you tell me, is this a good time to invest in mutual funds? Yeah, obviously. So there are different indicators in market actually, which actually tells you whether market is it is a good time to invest in. But actually, nobody can time the market. The biggest of the fund managers are not able to time the market, since actually market is something which is beyond everybody's capacity, I would say. So just to understand, so is it a good time today? I would say yes, because the Sensex currently is in the range of 51,000, 52,000. Nifty is in the range of 15,000, 15,300. So the market was around 61, 62,000 at times. I mean, back in November 2021, the Sensex was trading around 61,000, 62,000, right? So actually, if you look at today's scenario, we are already into a 20% correction mode. Okay, so just to understand market a little bit better, that is it a good time? So generally, people looks at price to earning ratio, PE of the market, right? So there are PEs available for Sensex, for Nifty. So currently, PE, that is price to earning ratio, is around 18. Okay, so one need to understand. So there are certain things which we follow. Let's say if your price to earning ratio is between 0 to 12 or 0 to 40, you would say it's the best time to invest, since market is valuations of the stocks is very, very cheap. So 0 to 12 is the best way. I mean, it's the best time to invest into. So you can, but that time the sentiment of the investor is very low. I mean, sentiment of the market is very low, and investor confidence is very low. So people tend to withdraw money at that time, but actually one should invest at that time. So I would say 0 to 12 or 0 to 14 is the P where one should invest into. 40 into 20, 22, 24, I would say it's a average P जहाँ पे आप invest कर सकते हो. ये भी एक अच्छे levels है where to invest into mutual funds or even stock market if you are expert into stocks. So these are very good levels since market have already corrected, and whenever P goes above 26 or 28 or 30, we say market is getting a bit overvalued.
now. So whenever the PE is above 30, one should be little bit cautious while investing. But systematic investment plan or STP is something which you can choose to get into any time, because everything is getting averaged out here. See, we are talking to general people, right? Yes. So PE and this kind of technical terms is very difficult to understand. Definitely. So if you compare a business, Hmm. normal business, suppose a normal kirana shop beside your place that you live, okay, you want to buy that shop, buy that whole business within. So when will you buy that business? When will it become profitable to you to buy that business? When it is making huge profit, or when it is hard time for him. So generally, it's when it's hard time for him, because he will sell you that business in a less amount. Correct. Okay, so that is the same scenario in market. कि जब टाइम थोड़ा खराब रहता है, तब अगर आप बाय करते हो, तो आपको सस्ते में मिलेगा, इजी मिलेगा. And best thing that I suggest for any investor is get into habit of investing. Okay, तो every month आप एक फिक्स अमाउंट डाल रहे हो, मार्केट ऊपर रहेगा, मार्केट नीचे रहेगा, because best of the people cannot time the market. ठीक है ना? Market will either go up, or it will go down, or it will go sideways. It's only three direction it will go. But no one can predict it. कितना ऊपर जाएगा, उसके बाद कितना नीचे आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा. तो आप systematically if you are investing, then you are at a better place of engaging money. तो जैसे कि आप अगर डेट फंड में डाल रहे हो, तो मार्केट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, उसमें ज़्यादा फर्क होता नहीं है, आता नहीं है, क्योंकि मार्केट से कंपेयर नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा आगे ये होता है. तो और सेकेंड चीज़, जो मार्केट ऊपर है और तभी आपके पास 10 लाख रुपए है जो आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट तो करना है. अगर आप कैप पे रहेगा, नॉर्मल पब्लिक कैप, तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ नया खर्चा दिमाग में आएगा. तो उस टाइम में क्या कर सकते हो, लमसम लिक्विड फंड या किसी और फंड में डाल सकते हो, और STP के थ्रू फिर इक्विटी में हाई स्टेज से उसको डिप्लॉय कर सकते हैं. तो सब बहुत सारा टेक्निक होता है, लेकिन मेन सबसे ये है कि आपका हैबिट है. तो हैबिट कैसा होगा, आहिस्ते आहिस्ते ही डेवलप होगा. तो बेसिकली जो आपको मालूम है उसके ऊपर से आप कभी कमाओगे नहीं. फॉर एग्जांपल, आपने कुछ कोर्स किया, ठीक है, अभी आपने कुछ कोर्स किया है, कोर्स किया है इसलिए आपको पैसा मिलेगा क्या? नहीं. उसके ऊपर आप कुछ एक्शन करोगे तो पैसा मिलेगा. तो इन्वेस्टमेंट भी सेम है, आपको मालूम है उसके ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा, आप उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो उसके ऊपर से पैसा मिलेगा. तो एक्शन राइट टाइम मिलेगा डिफिकल्ट है, इसलिए एवरी मंथ डालते रहो. वो अप्लाई करने भी आना चाहिए, सीख के क्या हो. तो उसकी वजह से डिफरेंस आता है कि मतलब कितना कमाना चाहिए. मतलब म्यूचुअल फंड ने तो बहुत कमा के दिए, बट लोगों ने कमाया क्या? नहीं कमाया. क्यों अप्लाई नहीं हुआ? तो आप यू ऑल्सो स्पोक अबाउट स्टॉक मार्केट. तो डू यू थिंक कि म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? So it depends actually. There are very few people who actually understand stock markets really well, and they have enough time समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो आप 2-3 दिन देखे और आप समझ गए, राइट. जस्ट ये पता होना कि निफ्टी का आज लेवल क्या है या सेंसेक्स का लेवल आज क्या है और आज मार्केट इतना करेक्शन हुआ, दैट इज नॉट इनफ नॉलेज, राइट. तो स्टॉक मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई स्टॉक्स पकड़ के चलते हो, राइट. आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पकड़ते हो, आप 2 या 3 स्टॉक पकड़ते हो, राइट. बट उसके फंडामेंटल समझना काफी जरूरी है. उसका बिजनेस लाइन क्या है, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है, उसका 2-3 साल का अर्निंग्स क्या है, ये सारी चीजें को समझना इम्पोर्टेंट है. अगर आपको उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, सो यू एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक इन चूजिंग स्टॉक्स. और ये होता है. अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स से हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि सर मैंने एक्स स्टॉक ले लिया, उसने मुझे 40% रिटर्न बना के दे दिया एक साल में. म्यूचुअल फंड में तो सर 15% रिटर्न आता है, 20% रिटर्न आता है. बट वो एक्स स्टॉक के साथ आपने एक वाई स्टॉक भी लिया, एक जेड स्टॉक भी लिया है, राइट. शायद ऐसा होता है बहुत दफे कि वो वाई और जेड स्टॉक्स उनका सही से चूज नहीं होता है, तो वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो अल्टीमेटली वो आपको वही 25% लॉस दे देता है, 30% लॉस दे देता है. तो आपका हिसाब सेम हो गया. या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोगों का एक्चुअल जो अर्निंग्स है उसके सामने लॉस बहुत ज्यादा होता है. सो देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर जिनसे हम लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि यार ये स्टॉक में मैंने कमाया लेकिन ये स्टॉक में मैंने गवा दिया. सो सही स्टॉक चूज करना उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट चाहिए. और म्यूचुअल फंड में वो एक फंड मैनेजर होता है जिसका डे इन डे आउट जॉब ही वही है, टू फाइंड आउट गुड क्वालिटी स्टॉक्स, इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स और लोगों को रिटर्न कमा के देना.
सो जिसके पास टाइम है और जिसके पास नॉलेज है वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, बट फॉर पीपल जिनके पास टाइम ही नहीं है या जिनके पास उतनी नॉलेज नहीं है गेन करने की, या कौन सा स्टॉक में डालना चाहिए, कौन से स्टॉक से आज डालना चाहिए, आज निकलना चाहिए, राइट, जिनको वो समझ नहीं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन। तो वो ऑटोमेट हो जाता है प्रोसेस। एग्जैक्टली, तो म्यूचुअल फंड्स में जब फंड मैनेजर बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्कीम टू स्कीम, बट जनरली आप देखो तो 40 50 60 स्क्रिप्ट्स होते हैं एक पोर्टफोलियो में। सो वहां पे कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक पे आपका रिस्क नहीं लगा हुआ है, आपका स्टॉक पूरा, आपका जो पोर्टफोलियो है पूरा डाइवर्सिफाइड हुआ है बिटवीन 40 50 60 स्टॉक्स, राइट। सो इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है जिससे कि आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अगर 60 में से 2-3 स्टॉक्स अच्छा नहीं भी करते हैं तो बाकी 45 48 या 55 57 स्टॉक्स आपके वो बाकी लॉसेस कवर करके आपको एक अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। सारा पॉइंट कवर कर लिया। एक पॉइंट मैं उस पर ऐड करना चाहूँगा कि अगर सोचो दो बंदे हैं, एक है जिसके पास 10,000 करोड़ है पैसे इन्वेस्ट करने का, और एक है जिसके पास 10 लाख है, तो कौन बेटर पोजीशन पे है रिसोर्सेस अलॉकेट करने को, नॉलेज लेने को? और सोचिए ये कौन ऑब्वियसली 10,000 करोड़ वाला है, 10 लाख करोड़ वाला क्या जीतेगा उससे 10,000 करोड़ से? तो वही हम लोग जब इन्वेस्ट करेंगे हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 1 करोड़, लेकिन स्टॉक का जो ये है फंड मैनेजर 10 करोड़ लेके 10,000 करोड़ लेके बैठा है, तो उससे बराबरी तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो उसको वो बोलता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तो वो उस पर आ जाता है म्यूचुअल फंड में। इसलिए म्यूचुअल फंड हमेशा मेजर टाइम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सेकेंड चीज़ होता है कि जैसा आपने समझो, मैंने आपको बोला कि 10 स्टॉक आप खरीद लो, आपका जो भी लगा के जो 20 साल तक चलने वाला है, तो बहुत मुश्किल होगा आपको 10 स्टॉक ढूंढने के लिए, ठीक है। या फिर आपको देखते हैं कि हर 2 महीने 3 महीने कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ आप निकालते जाओगे स्टॉक्स को, तो ऐसे इंडिविजुअल वो करना बहुत मुश्किल रहता है आपके लिए। तो बेटर आप जो आप कर रहे हो प्रोफेशन उसमें आप बेटर हो, और मनी मैनेजमेंट किसी और को दे दो ताकि आपका जो टाइम ये हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है, देखो अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे तो क्या होगा, टाइम आपको मैनेज करेगा। वैसे आप मनी को अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो क्या करेगा, फिर मनी आपको मैनेज करेगा। तो इसलिए फिर जो बड़े बंदे हैं उनके साथ अगर आप लोग दे रहे हैं तो इट्स बेटर, चांस बढ़ जाता है आपका उसको मैनेज करने का, उसको ग्रो करने का, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि इतना सारा पैसा है वहाँ पे लोग कर रहे हैं, नॉन लोग कर रहे हैं, तो फर्क आता है। जब वो कॉन्फिडेंस किधर काम आता है, जब मार्केट गिर रहा है तब मार्केट गिर रहा है, आप इंडिविजुअल खड़े हो तो आप गिर रहा है आप उस टाइम पे लॉस में बेच दोगे, ये थोड़ा दिक्कत है। और मैं कहूँगा यहीं पे फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल काफी बड़ा है, हाँ। क्योंकि ऐसे समय में बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। लेट्स सपोज अभी जैसे पिछले 2-4 महीने से या 6 महीने से चल रहा है, मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस इस टाइम पे बहुत कम हो जाता है। तो देयर इज फाइनेंशियल एडवाइजर्स रोल जो उनको कॉन्फिडेंस देता है, बोलता है कि सर आप ये स्कीम के साथ स्टिक रहो, या आप इन चीज़ों के साथ स्टिक करके रहो, आप इतने टाइम होराइजन के लिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, आप इसके साथ बने रहो तो आपका पैसा बने। काफ़ी दफ़े हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है, बहुत सारे लोग जैसे अभी ऑप्शन एक अवेलेबल है डायरेक्ट प्लान का, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स चालू करने के टाइम पे कर देते हैं, बट सेम टाइम जब थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, वो एसआईपी स्टॉक भी हो जाता है या पैसे लोग निकाल भी लेते हैं, तो वो सारे इश्यूज भी है। तो वहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल काफी बड़ा है। और जबकि ज़्यादा पैसे तभी बनता है कि मार्केट कम रहेगा तो आपको सस्ता भी नहीं मिल रहा। अब एक मतलब हम लोग का एक क्लाइंट का एग्जाम्पल आप लोगे तो 10,000 का उसने एसएम चालू किया था कोरोना के पहले, उस टाइम हो गया मार्केट, कोरोना के टाइम में मार्केट बहुत गिरा था, तो उसने स्टॉप कर दिया और विड्रॉ भी कर दिया। तो उसका कुछ 1 लाख 1.5 लाख कुछ था, उसमें 10,000 का लॉस बुक करके उसने विड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद हम लोग के कॉन्टेक्ट में आया, हमने उससे इन्वेस्ट किया, वापिस कोरोना के बाद मार्केट अच्छा है, तो रिसेंटली उसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा खासा दिखा। अभी जब मार्केट वापस गिरा है तो उसके बाद उसने बहुत सारा फंड्स भी डाले और लमसम में भी डाला। अभी उसका पोर्टफोलियो -70-80,000 पे गिर रहा है अभी 70-80,000 माइनस में। 10,000 उसने विड्रॉ किया था, बट अभी 80,000 माइनस में है, फिर भी वो बैठा है क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उसको समझ में आ गया कि कैसा वर्क करता है। तो अभी अगर समझो वो इंडिविजुअली करता तो अभी तक एग्जिट हो चुका था, तो वो एक फर्क रहता है। एंड बेसिकली लेमन के हिसाब से वी कैन ट्रस्ट यू, ऐसा कि इफ यू आर एन एडवाइजर तो आप कुछ सोच के बता रहे होंगे। हाँ, ओके। और वी हैव टूल्स कि हम आपको टूल्स निकाल के दिखा सकें, हाँ। पास्ट परफॉर्मेंस उसका क्या है, तो सब हम आपको बता सकते हैं
ट्रस्ट से ज़्यादा नॉलेज का बात आ जाता है यहाँ पे हम्म, कि पास परफॉर्मेंस अगर ऐसा ऐसा हुआ इतना पर गिरा है तो इतना परसेंट बाद में होता है तो आपको कॉन्फिडेंस हाँ ये नॉर्मल कोर्स है। तो फिर म्यूचुअल फंड्स अबाउट ये कि डू यू थिंक कि ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वर्क करेगा? शुड इट बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि शॉर्ट टर्म में भी इट कैन वर्क? एक्चुअली इट शुड बी लॉन्ग टर्म ओनली। Okay. सो जैसे मैंने बोला कि शॉर्टर टर्म पे मार्केट को टाइम करना किसी को भी पॉसिबल नहीं है कि आज मार्केट नीचे आया तो कोई ये आपको दावे के साथ नहीं बोल सकता कि हाँ इस लेवल पे आके रुक जाएगा और यहाँ से वापस जाएगा वो। हाँ। तो वो प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है मार्केट को, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं। उस फैक्टर को समझ के मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कोविड के टाइम पे 2020 में जब मार्च में मार्केट काफी नीचे आया था, 25,700 का सेंसेक्स आया था, उस टाइम पे सब लोग ये कह रहे थे अब 20,000 आएगा, बट एक्चुअली वैसा हुआ नहीं और 25,000 से वो धीरे धीरे बढ़ते 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 वन स्टेज में 35,000-38,000 हुआ। छोटा मोटा करेक्शन तो होता रहता है। तो हम लोग का कहना सिंपल है, इफ यू कैनॉट टाइम द मार्केट then it is the best way to invest in market is remain invested in market for a longer duration. Yes. So अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के आप कोई भी स्कीम्स उठा के निकाल के देख लीजिए, अगर आप उनका 1 ईयर 2 ईयर में अगर मार्केट अच्छी चली है तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 10 इयर्स अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट रखा है तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है। जो आप एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट या कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरिजन करने जाएंगे तो उनके मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न है। सेकेंडली सर ने एक बात करी उसके पहले कि रेगुलेशन, इसमें सेबी इन्वॉल्व है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ओके, सो यू हैव एक ऐसी रेगुलेटरी है जिसका पूरा ध्यान है इस इंडस्ट्री पे। ओके, सो रेगुलेशंस भी सब कुछ फॉलो होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू फॉर अ इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म रादर देन शॉर्ट टर्म। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी ऑप्शंस हैं, अगर आपको 20 दिन के लिए पार्क करने हैं पैसे, 25 दिन के लिए पार्क करने हैं पैसे, तो डेट फंड्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे लिक्विड फंड्स हम लोग बोलते हैं, तो लिक्विड फंड्स, डेट फंड में लिक्विड फंड्स ऑप्शन है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म प्लान ऑप्शंस है। तो आपके होराइजन के हिसाब से, अगर आपका होराइजन सपोज 1 महीना है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपका होराइजन 3 से 4 महीना है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास होराइजन 1 साल से 1.5 साल है, 2 साल का, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। सो देयर आर वेरियस स्कीम्स अवेलेबल। सो म्यूचुअल फंड्स, बहुत लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड्स यानी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड या मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने बोला कि डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया होराइजन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, राइट। उसके अलावा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो एज पर योर टाइम है और आपका रिस्क एपेटाइट, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हो फॉर इन योर इन्वेस्टमेंट्स, ओके, और आप कितने समय के लिए रखना चाहते हो, वो सारी चीजें एक्चुअली डिसाइड करती है, एक्चुअली हेल्प करती है फाइनेंशियल एडवाइजर को डिसाइड करने में कि आपको कौन सा स्कीम एडवाइस किया जा सकता है। Personally, what do you think? Are mutual funds less riskier than any other investment tools? सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि वो एक ट्रस्ट है। हाँ। तो अगर समझो किसी कारणवश उसको कंपनी को वो बंद करना है, बिजनेस अभी कंटिन्यू नहीं करना, तो वो जो किसी और कंपनी का तो वो मर्ज हो जाएगा, Okay. ठीक है। और आपका इन्वेस्टमेंट अभी वो कंपनी हैंडल करेगी, ताकि आपको उसके आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है। अमाउंट मार्केट क्वालिटी के उससे वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो आपका मेन फंड है वो सेफ रहता है। ऐसा नहीं कर दो कि फंड चला के कोई चला गया, वैसा सब इसमें होता नहीं, किसी और को देना पड़ता है आपको, तो उसका काफ़ी सारा इंस्ट्रूमेंट में वो सेफ होता है। Okay. सो जस्ट टू ऐड, जैसे बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है कि ऐसा कुछ हो गया जिसमें कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया और क्या मेरे पैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे पैसे कम हो सकते हैं। सी, यहाँ पे मार्केट का रोल है, जहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से आपके पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो लोगों को ये डर है कि कंपनी बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल डर होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उनको किसी कारण से अगर बिजनेस नहीं भी आगे लेके जाना है तो कोई दूसरा कंपनी आके उसके साथ मर्ज हो जाता है, या फिर वो बिजनेस अपना किसी और कंपनी को बेच के वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें भी सेबी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि ये सारे डिसीजन सेबी के अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके, तो सेबी हैज टू कम इनटू द पिक्चर और वो सारी चीजें अप्रूव करते हैं, उसके बाद ये सारे डिसीजंस होते हैं, क्योंकि वो रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड बिजनेस में और इवन स्टॉक मार्केट में। सो सिंपल है, अगर किसी को जैसा मैंने बोला कि अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है और किसी और कंपनी को इंटरेस्टेड है तो उनके अप्रूवल के बाद ये सारी चीजें आगे जाती है। तो सेफ्टी वाइज अगर लोगों को ये लगता है कि कहीं मेरा पूरा पैसा नहीं चला जाए, तो वैसा नहीं होगा। तो वो उस मामले में आप निश्चिंत रहें।
it हो is सकता है। less risk. Yeah. And अभी looking at the current global economic situation, do you think mutual funds पे इसका effect होगा? हमेशा से होता है, और जहाँ पर भी आपका, जैसे म्यूचुअल फंड में मैंने बोला, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, हाँ. ओके, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में जा रहा है डायरेक्टली, ऑब्वियसली जैसे ग्लोबली अगर कुछ प्रॉब्लम है, और आज के टाइम ग्लोबलाइजेशन जब से 1991-92 के बाद हुआ है, तब से एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगर यूएस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है या चाइना में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो इंडियन मार्केट को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ से भी पैसा आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास भी उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ, वो इम्पैक्ट कितना होता है वो देखना पड़ता है उस क्राइसिस पे, कि क्राइसिस क्या है। जैसे आज जो हम लोग बोल रहे हैं कि वोलेटिलिटी बहुत है, बट ऐसे टाइम में मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, कि ऐसे टाइम में हम लोग को और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पैनिक रहता है तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जब आपको चीजें सस्ते में मिल रही है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ऊपर जाती है। आप स्टॉक प्राइस ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स के एनएवीज ले लीजिए, सारे ऊपर जाने वाली है। तो लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सेंसेक्स को देखिए, शुरुआत हुई थी जब से, अगर आप 90 से भी अगर शुरुआत करेंगे तो 90 से अगर आज हम लोग 2022 में, तो ऑलमोस्ट 32 साल हो गए 1990 से, राइट। तो वहां से हम लोग देखेंगे तो सेंसेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट। 2003-4 में जो सेंसेक्स 3000-4000 हुआ करता था, आज वो 51-52,000 पे, आफ्टर गोइंग टू 62,000। सो अगर आप लॉन्गर टेन्योर पे देखेंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो आपको एक ग्राफ ऊपर जाते हुए नजर आता है, ना कि नीचे जाते हुए नजर आता है। तो लॉन्गर टर्म में जैसे हमने बोला कि पैसा बनता है, सो यू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। Is there anything else you would like to add? No, sir. Okay, so I definitely learned a lot about mutual funds today. Thank you for joining SocioBits, and thank you so much again. Well,